I love to welcome you all in a very special show, which is Winning Over Epilepsy. My guest for today is not only a doctor, but a professor at St. G.S. Medical College and KEM Hospital. She is a consultant at Global Hospital Parel, Mumbai. She is also a HOD in neurology. She is also heading Comprehensive Epilepsy Care Center, which is in both the hospitals. So I welcome you, ma'am. Thank I think you. this is the very special day and the perfect day to share and discuss about epilepsy. Yeah, today is World Epilepsy Day, International World Epilepsy Day, 8th of February. So it is a good time to give some intro, to the patients, some know-how about. There are lots of stigmas and lots of wrong beliefs about epilepsy which are going on. So moving further, I really wanted you to explain a little more about what is epilepsy, because I know you know better than me. But then too, I want you to explain this term. Epilepsy. Yeah, so I will also speak some part in Hindi and some in English, Definitely. probably mix it will be. So जैसे हमको पता है when you have a heart में कार्डियोग्राम निकालते हैं, that is called ECG. Similarly in brain also there is an electrical rhythm which is going on, और वो EEG के ऊपर हम डिटेक्ट करते हैं. ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस है उसमें सडनली एक शॉर्ट सर्किट होता है एंड सडनली बढ़ जाती है. So that produces seizure, which is also called as a fit या फिर मिर्गी. तो ये अटैक होता है. वो जो अटैक होता है तभी शॉर्ट सर्किट होता है, सडन बढ़ जाता है, तो पर्सन बिकम्स कंफ्यूज्ड, पर्सन बिकम्स अनकॉन्शियस, बड़ा फिट आ सकता है. अब ये एक फाइनाइट इवेंट हो गया, वो 2 मिनट में 3 मिनट में पेशेंट सही हो जाता है. बट अगर इसको बोलते हैं सीजर, बट अगर ये आपको बार बार होने लगा और उसका कुछ कारण ऐसा, चलो आज आपको बुखार आया इसलिए फिट आया तो ठीक है, आप ठीक हो गए. बट अगर आपको कारण ऐसा है जो बार बार होने वाला है तो आप एपिलेप्सी या मिर्गी के बीमारी बोलते हैं. सो वन फिट और वन सीजर डज नॉट मेक यू एपिलेप्सी. You have to have a recurrent fits to label you as an epilepsy, because it is very important if you are labeling someone as an epilepsy, all lifelong the person will have that stigma and that label. So it is important that you diagnose patients with seizure alone with a known cause, preventive one time cause, and don't label them as epilepsy. But when they have a recurrent, they will label it as epilepsy. Okay, and also I think it's requisite to ask what are the causes for epilepsy? See, there are many causes. Basically हम जब भी causes बताने जाते हैं किसी भी बीमारी के, तो एक रहता है जो हेरिडिटरी, जिसको बोलते हैं जेनेटिक. सो इवन इन एपिलेप्सी, अगर पेरेंट्स को हो एपिलेप्सी या सिबलिंग्स को एपिलेप्सी, तो चांसेस ऑफ पर्सन गेटिंग चाइल्ड गेटिंग एपिलेप्सी इंक्रीजेस बाय 10%. So out of total epilepsy patients, at least 20 to 30% may have due to this genetic or abnormal mutations in their genes which will cause epilepsy. अभी दूसरे कारण ऐसे हैं राइट फ्रॉम चाइल्डहुड. सो आप जब बच्चे पेट में होते हैं तभी अगर मदर को कुछ इन्फेक्शन हो गया या कोई इंजरी हो गई या फिर कुछ abnormal thing which has happened, some infections desired, that will have effect on or she has taken some wrong drugs on the brain of the child, because the child is very immature and very fragile that time. तो वो लाइफ लॉन्ग उस पे ब्रेन पे असर हो जाता है. फिर जब बच्चा बाहर आता है तभी अगर आप जब लेबर के टाइम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ पीडियाट्रिशियन इज देयर, क्योंकि वो पीडियाट्रिशियन देखता है कि बच्चा बाहर आने के बाद तुरंत रोना चाहिए. अगर बच्चा दूर से रोया तो ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाता है, because the lungs are not expanding. रोता है तभी लंग एक्सपांड होता है, and this will cause a permanent damage to the brain. So it is important. This is one important preventable cause. Okay. Then comes that either you may have an infection in the brain which may be due to meningitis, encephalitis, TB का infection, cysticercosis, or you may have right from birth some cells are abnormal which is called as a dysplastic cell. अभी कभी किसी की उंगली कम होती है जन्म से, वैसा ब्रेन में भी कुछ सेल्स abnormal जन्म से हो सकते हैं. So that is called dysplasia, that will produce seizure. ट्यूमर्स हो सकते हैं. फिर आपको पैरालिसिस का स्ट्रोक आया तो उसके बाद एक स्कार रह जाता है, उससे हो सकता है. एंड अदर मेजर प्रिवेंटेबल रीजन इज हेड इंजरी. It is very important people have helmet and
have safe driving on the bikes or they are safe in the car, because all the head injury can potentially become स्कार होता है ब्रेन में और आगे जाके एपिलेप्सी होती है। और एपिलेप्सी वो उसमें जब होती है तो इट इज़ फिर हमेशा के लिए रहती है, एक बार ब्रेन में स्कार हो गया तो। So that way there are so many causes which can cause epilepsy apart from the hereditary. Right. और मैम आंसरिंग द कॉल ऑफ नेचर, क्या उसमें भी इसके कोई साइड इफेक्ट या बैड इफेक्ट्स होते हैं, लाइक जब यूरिनेट करना या ऐसी कुछ चीजें करना, उसमें भी क्या इसके कोई इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं? No, not usually. Urinary this thing उसमें सिंकप ही हो सकता है, उसकी वजह से एपिलेप्सी नहीं होती है ये टाइम की। इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट। राइट। सो आई थिंक इस एक डिसऑर्डर की वजह से व्यूअर्स को पैनिक होने की जरूरत नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, That क्योंकि वो हमेशा बाय एंड लार्ज फाइनाइट इवेंट रहता है। अगर 5 मिनट से आगे जाता है तो यू टू रश टू द हॉस्पिटल, बट अगर बाय एंड लार्ज 2-3 मिनट में खत्म हो जाता है, तो कोई ऐसे होता है फ्यू सेकेंड्स में खत्म हो जाता है, तो उसके बाद देन यू डोंट हैव टू वरी। पेशेंट को पूरे होश में आने को थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर वो जो मूवमेंट हो रहे हैं वो बंद हो जाते हैं। बट आई थिंक अवॉइड करना भी बहुत डेंजरस है, राइट? अवॉइड व्हाट यू वांट? नॉर्मली हम, जैसे मैंने कॉमन लोगों में मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि कोई भी छोटी सी बीमारी हुई, ठीक है, ठीक हो जाएगा। हाँ, नो, एक बार अगर आपको डाउट लगे तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप उसके स्पेशलिस्ट के पास जाइए। स्टार्टिंग में बाजू के जनरल प्रैक्टिशनर के पास आप दवाई ले लो, चलो ठीक हो गया, बाद में छोड़ दो, वो बहुत गलत है। क्योंकि पहली बार जब आप एपिलेप्सी के डायग्नोज हुआ तो उसके एपिलेप्सी के बहुत सारे सिंड्रोम्स और डिफरेंट टाइप्स हैं, तो डिफरेंट टाइप का डायग्नोसिस और लेबल लगाना जरूरी है। क्योंकि अगर वो लेबल नहीं लगाया तो आपको जो ड्रग अगर गलत मिली, एपिलेप्सी की 20 दवाइयाँ हैं, उसमें से कुछ दवाई कुछ तरह की एपिलेप्सी के लिए, अगर वो गलत मिली वो दवाई, तो वो दवाई से एपिलेप्सी बढ़ भी सकती है। सो स्टार्टिंग में आप जाओ, आपका MRI EEG वो सब करके आपका करेक्ट लेबल जरूरी है। वंस यू हैव अ करेक्ट लेबल, उसके बाद आपका करेक्ट ड्रग ऑफ चॉइस होगा, एंड वंस यू हैव अ करेक्ट ड्रग ऑफ चॉइस, योर चांसेस ऑफ कमिंग अंडर कंट्रोल विथ मेडिकेशन बहुत ही अच्छे हैं। Right. I think I should have asked this question before, but let me now ask this कि ये जो seizures हैं, I think ये भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। हाँ, बहुत सारे I तरीके। really wanted to explain a little more. See, इसमें it could be very simple as you just have a eye blinking like this. Okay. As simple as that. Sometimes you may just have a hand jerking like this. Right. Sometimes you may have a jerk like this. In children, you may have a just flexion of the whole body in the small children. Okay. And from that, or sometimes you may just have a confusional behavior. That's the way people do it. Okay. And during that confusion, they may run around also. They may hit someone. They may tear off their clothes. So confusional, जिसको temporal lobe epilepsy बोलते हैं, eyes वाले जो है उसको absence epilepsy बोलते हैं, और ये सब आगे जाके बड़ी फिट भी हो सकते हैं, जिसको जनरलाइज्ड टॉनिक-क्लॉनिक सीजर। सो दिस कुड बी वेरिड मैनिफेस्टेशन। And I think this is how we can recognize this disorder. एब्सोल्युटली। तो ले पब्लिक में जानना बहुत जरूरी है कि ये अलग अलग लोगों को ज्यादा करके बड़ी फिट ही मालूम होती है, बट ये जो छोटे छोटे हैं Exactly. वो अगर मिस हो गए तो बहुत देरी हो जाती है निदान करने में। और कई बार बच्चों में जो स्टेयरिंग एपिसोड है ना, बच्चों में ज्यादा रहता है एपिसोड, ब्लैंक एब्सेंस सीजर, तो यूजुअली टीचर को भी ना पता चलता है ना फिर पेरेंट्स को पता चलता, तो यूजुअली आते हैं कि ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बुलाए तो ध्यान नहीं देता है, फिर बाद में जाके पता चलता है कि उसको एब्सेंस एपिलेप्सी हो रही है, इसलिए वो पढ़ नहीं पा रहा है। Exactly. क्योंकि वो जब चालू होता है तो दिन में 50 बार होता है। Ma'am, over to you. As far as you know, in your opinion, how this epilepsy diagnosed? कैसे इसका निदान कर सकते हैं? देखिए, एपिलेप्सी का निदान में हम पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पेशेंट का हिस्ट्री लेना। मतलब पेशेंट को तभी क्या हुआ, आई विटनेस ऑफ द एपिसोड जो होते हैं उनसे बात करना। फिर वो आई विटनेस सपोजिंग आपके साथ पेशेंट के साथ नहीं आया हो आपके चैम्बर में दिखाने, तो उनको फ़ोन करो। टीचर ने देखा है, दोस्त ने देखा है, काम पे किसी ने देखा है, फ़ोन करके बात करो उनसे। क्योंकि वो जो आपको बताएंगे सबसे पहले आँख ऊपर चली गई कि नहीं, पहले कहाँ से चालू हुआ, कितनी देर तक बेहोश था,
उसके ऊपर से ही पूरा निदान होता है एक चीज़। वंस यू नो द फुल हिस्ट्री, उसके बाद आप आगे आके उनसे कुछ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो वन आई सेड ईईजी, जिसको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम बोलते हैं। सो सर पे थोड़े वायर लगाते हैं और 1-2 घंटा तक पेशेंट को सुलाते हैं और उनका ब्रेन में जो इलेक्ट्रिक रिदम है वो रिकॉर्ड करते हैं। कई बार ये जो सिंपल ईईजी बोलते हैं, कई बार हमको इसके बाद भी पता नहीं चलता, क्योंकि ये जो सिंपल ईईजी जब हम एक बार करते हैं 40-50% में ही पॉजिटिव आता है। तो ये नेगेटिव नॉर्मल हुआ, उसके बाद भी एपिलेप्सी मिर्गी हो सकती है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि अरे मेरा ईईजी नॉर्मल है, मुझे एपिलेप्सी नहीं है, पर वो गलत है। तो दूसरी तरीका है कि आप 2-3 बार करो, और दूसरा एक वीडियो ईईजी जिसको बोलते हैं, जिसको लंबा समय तक करते हैं। सो वी कैन एडमिट पेशेंट एंड डू इट फॉर 2-3 डेज, और उसका जो एपिसोड है वो रिकॉर्ड करें हम। तो वो रिकॉर्ड जब एपिसोड आ रहा है, और तभी जब अगर ईईजी करे और वो अगर वो हमेशा अगर एपिलेप्सी है तो दिखाएगा, ईईजी में एब्नॉर्मलिटी आना ही चाहिए। तो देन इट इज़ ऑलमोस्ट 100% डायग्नोसिस कि चलो इसको एपिलेप्सी है। कई बार ऐसे होते हैं जब साइकोलॉजिकल सीजर होते हैं, जब पेशेंट मालिंगरिंग करता है, फेंट कर, आई मीन रॉन्ग, दे डोंट हैव एक्चुअली बट दे आर जस्ट फेंटिंग लाइक दैट। सो उसमें अगर वो रिकॉर्ड करे एपिसोड तो ईईजी नॉर्मल होगा, तो आपको पता चलेगा ये साइकोलॉजिकल है और उसको मिर्गी की बीमारी नहीं है। तो ये एक ईईजी का हो गया। उसके बाद आपको रीजंस जानना है। ईईजी में तो आपको पता चलता है ओके इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है, उनको एपिलेप्सी है, बट क्यों हो रहा है वो जानने के लिए आपको फैमिली हिस्ट्री देखना है, और किसी को है कि नहीं वो देखना है। पास्ट बचपन में उनको कुछ ब्रेन एंसेफेलाइटिस हुआ है, बुखार में जब पहले 5 साल के उम्र में होता है, बुखार के साथ अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो मिर्गी हो सकती है, जिसको फिब्राइल कन्वर्जेंस बोल रहे हैं। तो वो सब हिस्ट्री आपको लेना है। उसके बाद आपको एमआरआई करना है ब्रेन का, या सीटी स्कैन करना है। बेस्ट इज़ एमआरआई, बिकॉज सीटी स्कैन में कई चीज़ आप मिस कर सकते हो ब्रेन के एब्नॉर्मलिटी। तो 3 टेस्ट और द बेस्ट एमआरआई जो मिल रहे हैं वो करो। इसमें ब्रेन में जो भी खराबी है, ट्यूमर है, गांठ है, इन्फेक्शन है, या फिर कुछ डिस्प्लासिया सेल है, पैरालिसिस का अटैक है, वो सब पता चलेगा। सो वी नो व्हाट इज़ द इटियोलॉजी, कारण क्या है ये मिर्गी का। और उसके बाद फिर आगे दूसरे कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं, लाइक पेट स्कैन, जिसमें ब्रेन का मेटाबॉलिज्म पता चलता है। फंक्शनल एमआरआई होते हैं, बट दैट इज़ फॉर स्पेसिफिक सर्टन पीपल ओनली। बट मेनली हिस्ट्री देना है, ईईजी करना है, एक बार नहीं 2-3 बार करना है, लंबा समय तक 2-3 दिन का, 2-4 घंटे का कर सकते हो। उसमें कई बार आप स्लीप और अवेक ईईजी भी कर सकते हो, एंड एमआरआई। दैट इज़ द मेन 3 थिंग्स विच यू शुड डू फॉर डायग्नोसिस और निदान करने के लिए। ओके, एंड मैम सपोज ये जो डिसऑर्डर है अगर ये काफ़ी सालों पुराना है, सो वुड इट बी डेंजरस बॉडी में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ नहीं, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। आप मिर्गी के साथ भी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हो। देयर आर सो मेनी फेमस पर्सनालिटी लाइक पाइथागोरस को हिपोक्रेटिस को, या आई मीन देयर इज अदर पीपल हु हैव, या अभी ये फातिमा शेख हु इज गॉट दंगल की जो हीरोइन है उसे। सो देयर आर जॉन्टी रोड्स, द स्पोर्ट्समैन, द टॉनी ग्रेग, दे ऑल हैव एपिलेप्सी बट स्टिल दे हैव गॉट great achievement in their life. So but there are 10-20% of the children who have a mental retardation along with that, so that is different. But there are many people who can achieve normally and who can have a normal life, but they have to accept अभी मुझे है मिर्गी तो मैं उसके साथ जीने वाली हूँ, और मैं उसके साथ दवाई रेगुलरली लेने वाली हूँ, तो they can do a normal lives. Ma'am, would it also caused by regular restrictions, or I mean, if someone is keep on doing nagging on something? नहीं, this is nothing to do with emotions. This is a organic brain disorder. शॉर्ट सर्किट ब्रेन में होता है, इसलिए होता है। बट ऐसा है, अगर एक पर्सन एपिलेप्सी का डायग्नोसिस हो गया उसको, ही इज़ एन एपिलेप्सी पर्सन, तो उसको अगर आप ज़्यादा इमोशनल अपसेट होता है, ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन होता है, तो मिर्गी का अटैक आने का चांस बढ़ता है। ऐसा है। बट डी नोवो नॉर्मल पर्सन में इमोशनल अपसेट से नहीं होता है। So it must be treatable? Yes, it is definitely treatable. There are mainly 2 ways we can treat. I mean 3 things. One is the दवाइयाँ देने, 20-22 प्रकार की दवाइयाँ हैं इसके लिए। दवाइयाँ की साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले कंट्रोल करो। साइड इफ़ेक्ट्स आर मैनेजेबल, और हर एक को होता है, ऐसा नहीं है। 5-10 लोगों 10% पीपल को साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है।
बट उसमें ये है कि आपको ये दवाई लंबा समय तक चलती है, कुछ सालों के लिए। पर अभी किसी को डायबिटीज़ हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, तो लंबा समय लाइफ लॉन्ग लेते हैं, तो इसमें क्यों नहीं? आप खाना 2 बार खाते हो, दवाई 2 बार लेनी है। लोगों को ऐसा सोचना चाहिए, ठीक है मैं दवाई ले लूँगा, उससे अगर कंट्रोल रहता है तो अच्छा है। क्योंकि मिर्गी का क्या है, वो अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं भी कभी भी हो सकती है, और कहीं भी हुई तो आपको इंजरी हो सकती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू प्रिवेंट। तो वन इज़ दैट मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट, जो आपको सही दवाई आपका न्यूरोलॉजिस्ट जो एपिलेप्टोलॉजिस्ट है वो देगा, तो वो चालू रखनी है जब तक वो बोलेंगे तब तक। और वो रेगुलर कॉम्प्लायंस बहुत ज़रूरी है। और कई बार बच्चे भूल जाते हो तो पेरेंट्स को या फिर स्पाउस को बताना है कि आप रेगुलर चेक रखो कि वो खा रहा है कि नहीं। ओके। सेकंड इज़ अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और एक बार आपको मिर्गी हुई तो थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ जीना है, नो लेट नाइट्स, फास्टिंग नहीं करना है, रोज़ा नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज़ों से फिट्स आने का चांसेस बढ़ जाते हैं। सो रात को देर तक मोबाइल पे घूमना, यू हैव टू हैव अ 7-8 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी नाइट, यू हैव टू हैव अ रेगुलर आवर्स ऑफ मील्स। आज देरी हो गया काम पे, 3 बजे खाऊंगा, 12 बजे नहीं खाऊंगा, वो गलत है। सो वो थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ जीना है। एंड कुछ फास्टिंग एंड ऑल यू फील मे बी मोर वीकर, और शायद इस वजह से हाँ नहीं हो गया, ग्लूकोज कम हो जाता है वो समझे, तो उससे फास्टिंग की वजह से फिट्स आने के चांस बढ़। और रोज़ा में तो क्या होता है, वो लोग दवाई भी बंद कर देते कई बार पेशेंट्स, कुछ नहीं खाना करके, तो उससे भी बढ़ जाते हैं फिट्स। और एक बार ये जो दवाई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया, और दूसरा कुछ चीज़ें उनको अवॉइड करनी चाहिए, लाइक अभी फिट आया है तो अगर 6 महीना साल भर के लिए आप ड्राइविंग मत करो। स्विमिंग में अगर सुपरवाइज्ड है तो ही स्विमिंग करो, क्योंकि डू नॉट वर्क ऑन द हाइट, क्योंकि अभी कभी भी आया तो आप गिरने के चांसेस है। डू नॉट वर्क ऑन द हैवी मशीन्स। सो ये थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ लेना ज़रूरी है। और उसके बाद अब थर्ड थिंग इज एक सर्जरी, जो कुछ लोगों में पॉसिबल है। एंड ऑल्सो मैम, अभी आजकल जो नॉर्मली अडल्ट्स में देखने को मिल रहा है, दे आर मोर एडिक्टेड टू स्मोक, अल्कोहल, तो क्या ये चीज़ें भी अफेक्ट कर? डेफिनेटली इफ़ यू हैव एन एपिलेप्सी बीमारी है आपको, तो अल्कोहल और ये सब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल एंड कुछ थोड़ा सा कभी कभार लिया तो ठीक है, मगर अदरवाइज लिटिल मोर डेफिनेटली इट विल प्रेसिपिटेट फिट्स। और अल्कोहल ज़्यादा पीने से भी फिट्स होती है, जिसको रम फिट्स बोलते हैं, वो भी हो सकती है रम फिट्स। अल्कोहल पीने से फिर हेड इंजरी होती है, उससे भी फिट्स आ सकती है। सो दैट इज़ डेफिनेटली देयर। I think we are having insightful conversation. Thank you so much for coming here. And okay, moving on with another question. I think it was expected to ask, um, how does it cure? And also, क्या है ये epilepsy surgery? देखो, एपिलेप्सी का क्योर कुछ जेनेटिक एपिलेप्सीज वगैरह में दवाई से ही हो जाता है। आप कुछ सालों के लिए दवाई लो, 2-3 साल तक फिट नहीं आया तो उसके बाद आप धीरे धीरे दवाई बंद कर दो। और बाय डेफिनेशन ऐसा है कि 5 साल तक दवाई फिट नहीं आई और उसके 5 साल आप दवाई बंद किया, उसके बाद भी फिट नहीं आई, तो आप बोल सकते हो कि आपको क्योर हो गया एपिलेप्सी का। मगर दूसरा एक रीज़न क्योर हो सकता है, वो एपिलेप्सी सर्जरी से। वो 70% दवाई से कंट्रोल हो जाते हैं। बाकी जो 30% है उनमें 20 to 25% लोगों को एपिलेप्सी सर्जरी कर दें। अभी सर्जरी में क्या है, आपके एमआरआई में अगर हमें दिमाग का जो आप फ़ोटो निकालते हैं एमआरआई, उसमें अगर हमें मिले कि ये एक भाग छोटा सा ख़राब है, वहीं से फिट आ रही है, ओके, तो वो जानने के लिए हम एमआरआई करेंगे, फिर उनका वीडियो ईजी करेंगे, जिसमें उनको एडमिट करके उनका 2-3 फिट रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें पता चलता है ये ऑनसेट जो है फिट का, ये एक भाग जो एमआरआई में ख़राब दिखा वहीं से हो रहा है। और फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन आंसर न्यूरोसाइकोलॉजी टेस्टिंग करते हैं, जिसमें वो दिमाग का वो भाग काम कर रहा है कि नहीं। अगर वो काम नहीं कर रहा है और फिट वहीं से आ रही है तो हम उसका ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं। मगर अगर वो काम कर रहा है, इम्पॉर्टेंट भाग है, जैसे हमारा हाथ पाँव का सेंटर वहाँ पे है, तो हम शायद वो ऑपरेशन नहीं कर सकते। बट काफ़ी जो टेम्पोरल लोब्स जो है और जो सर्जरी है, उनमें ओवर द टाइम वो भाग काम करना बंद कर देता है, तो वो निकालने से पेशेंट को कुछ नया तकलीफ़ नहीं होता है, सिर्फ फिट्स कम हो जाती है, बंद हो जाती है। और ऑपरेशन के बाद हम 1-2 साल तक दवाई चालू भी रखते हैं, फिर धीरे धीरे कम करते हैं। तो ये एक तरीका है क्योर होने का।
सो अगर फिट्स कंट्रोल में नहीं आ रही हैं दवाई से, तो आप एडवाइजेबल कि आप वो कॉम्प्रिहेंसिव एपिलेप्सी केयर सेंटर में जाइए। वहाँ पे एक टीम ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट सब साथ में आपको देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि आप एपिलेप्सी सर्जरी के कैंडिडेट हो या नहीं। और उसके कुछ सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं, पेट स्कैन और वो सब, उसके बाद पता चलता है कि इनको सर्जरी पॉसिबल है, देन वी ऑफर अ सर्जरी। और इट्स अ ब्रेन ओपन सर्जरी, ब्रेन खोल के प्रॉपर सर्जरी है, सो इट्स नॉट अ माइनर सर्जरी। बट अगर पेशेंट का मेरे की पूरा कंट्रोल हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी सुधर जाती है। वी आर एट KEM, वी आर रनिंग कॉम्प्रिहेंसिव एपिलेप्सी केयर सेंटर सिंस 2001 एंड ऑल्सो एट ग्लोबल एट सिंस 2014। हमने 600 से ज़्यादा लोगों का सर्जरी किया है। वेस्टर्न इंडिया में वी आर वन ऑफ द टॉप पीपल। Yes, I trained myself at Melbourne for this epilepsy epilepsy surgery program के लिए, and then we started here in 2001. And the results are very good, and the important thing is that KEM, it is the cheapest in world. The whole thing, the investigation, surgery, everything is far cheaper than this thing. I think एक फाइनेंशियली भी लोगों को इतना बड़ा यस अभी क्योंकि ये सालों भर आपको दवाई, एपिलेप्सी की दवाइयाँ भी महंगी रहती हैं, तो ज़िंदगी भर वो दवाइयाँ खाना, उसका खर्चा लेना, उससे अगर ये एक टाइम में अगर ऑपरेशन हो के आप क्योर हो सकते हो, तो वो ऑप्शन देखना ज़रूरी है। हमें हर एक में पॉसिबल है ऐसा नहीं है, बट वो देखना ज़रूरी है, जांच करना ज़रूरी है कि ये पॉसिबल है कि नहीं मेरे बच्चे में या मेरे में, ऐसा। मैम दिस इज़ माई पर्सनल डाउट जो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रही थी कि कोई स्पेसिफिक डाइट है जो एपिलेप्सी के पेशेंट को लेनी चाहिए। ये एक देयर आर सर्टेन कीटोजेनिक डाइट जिसको बोलते हैं, विच इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। तो बच्चों में ज़्यादा देते हैं जब दवाई से कंट्रोल में नहीं आती है और सर्जरी भी नहीं पॉसिबल है, तो एक स्पेशल डाइट रहता है जिसमें हम एक दिन एडमिट करके उनको स्पेशल डाइट पे डालते हैं, फिर घर पे जाते हैं। बट इसमें एडेयर है ना, क्योंकि बच्चों का सेम फेम्ड कीटो डाइट, यस कीटोजेनिक डाइट, बट उसमें ये बच्चे वही खाना वो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो 5-6 महीने के लिए रखते हैं, उसके बाद बच्चे थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो 50% ऑफ द पीपल हैव 50% इम्प्रूवमेंट विद दिस कीटोजेनिक डाइट, नॉट एवरीबडी इम्प्रूव्स, ऐसा है। Mom, this is not because of gender disparity, but then to women give birth to child. So my question is कि is there any special concern जो women patients को लेनी चाहिए अगर वो epilepsy से गुजर रहे हैं तो? Definitely, we have a prerogative कि हम बच्चे को जन्म देते हैं, so हमें उसके लिए थोड़े एक्स्ट्रा केयर लेनी पड़ती है। जब वुमन को एपिलेप्सी होती है तो देर आर सर्टन ड्रग्स विच वी हैव टू अवॉइड, ओके। तो वो अगर वुमन चाइल्ड बेयरिंग एज में आते हैं तो पहले से हमें पूछना चाहिए कि अगर उनकी शादी हुई है या शादी होने वाली है या फिर टीन एज में, तो ऑब्वियसली वी चूज़ अ ड्रग विच इज़ सेफ फॉर द चाइल्ड कमिंग चाइल्ड। सो देर आर 2-3 ड्रग्स विच आर सेफ, एंड वंस वी ऑलवेज हैव टू टेल देम आप प्लान्ड प्रेगनेंसी करो, हमें आगे से बता दो कि आप कब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, 6 महीने आगे से। तो हम उसका ड्रग लेवल करते हैं, क्योंकि ये जो हम दवाई लेते हैं उसका ब्लड टेस्ट करते हैं, इसमें उनका लेवल आते हैं आपके बॉडी में, वो दवाई की मात्रा कितनी है, तो वो मात्रा सही प्रमाण में होना ज़रूरी है। तो बिफोर प्रेगनेंसी हम एक लेवल ले लेते हैं कि अभी ये मात्रा में उनका मेरे कंट्रोल में। फिर जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका वज़न बढ़ता है, बच्चा भी अंदर है, तो वो ड्रग का लेवल कम होते जा रहा है, तो हमको रिपीट सीरम लेवल करना पड़ता है हर 2 महीने में, और उसके मुताबिक हमें डोज बढ़ाना पड़ता है, दवाई का डोज। और फर्स्ट 3 मंथ्स में, फर्स्ट 18 वीक्स में यू टू डू सर्टन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और स्पेशल सोनोग्राफी। 95% of the women with epilepsy will have a normal children, normal pregnancy, but 5% में चांसेस है कि बच्चे पे कुछ असर हो, ओके। तो उसके लिए आपको स्पेशल सोनोग्राफी, सर्टन ब्लड टेस्ट, वो सब करना ज़रूरी है, और पहले 16 to 18 वीक्स में आपको पता चल जाएगा कि असर है या नहीं। तो अगर ऐसा है तो आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हो, बट उसमें मायूस होने की बात नहीं, क्योंकि 95% यू मे हैव अ नॉर्मल चाइल्ड ऑल्सो। सो उसके बाद फिर अगर आप एक बार 18 हफ्ते में आपका नॉर्मल है, सब बच्चा अच्छे से डेवलप हो रहा है, तो देन यू टू कंटिन्यू फॉलोइंग अप क्लोजली विथ
न्यूरोलॉजिस्ट, क्योंकि हर महीने जैसे आपका वजन बढ़ेगा, बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है, तो दवाई का लेवल बढ़ाना पड़ता है। और दवाई बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है। बहुत सारे लेडीज़ ऐसा सोचती है अभी मैं प्रेग्नेंट है, बच्चे पे असर होगा, दवाई बंद कर देती है। दवाई बंद करने पे बड़ी फिट आती है तो तब भी बच्चे को ऑक्सीजन कम हो जाता है और एबॉर्शन भी हो सकता है। सो नेवर स्टॉप अनलेस द डॉक्टर हैज़ टोल्ड यू। अगर ऐसा है 2-3 साल तक आपको फिट नहीं आई है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो डॉक्टर विल ओनली टेल कभी आप बंद करो, 6 महीना हम देखते हैं, अगर कोई फिट नहीं आती है दवाई बंद करने के बाद तो यू कैन हैव अ सेफ प्रेगनेंसी विदाउट मेडिकेशन। राइट, एंड आई थिंक डॉक्टर के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड विदाउट एनी कम्युनिकेशन गैप होना चाहिए। हाँ, बहुत बहुत क्लोज फॉलोअप होना ज़रूरी है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और जहाँ पे आप डिलीवरी के लिए बताते हो वहाँ पे भी आपको बताना है कि आप कोई न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो। अगर आपको ड्यूरिंग डिलीवरी भी फिट्स आने का चांसेस बढ़ते हैं। और एक बार आप बच्चा हो गया तो उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करना है। लोग सोचते हैं नहीं ये दवाई ले रहे हैं, बच्चे को दूध में जाएगी, बच्चे को असर होगा, बट एक आधा 2 फिनोबार वो ऐसा कुछ है जिस पर बच्चे पे थोड़ा बच्चा ड्राउजी हो सकता है, बाकी सब दवाई सेफ़ है। और ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेजेस आर मच बेटर। ऐसे बहुत सारे स्टडीज़ हैं जो बोलते हैं अगर ब्रेस्ट फीड किया तो IQ इज़ डेफिनेटली बेटर बच्चों का। सो ब्रेस्ट फीडिंग करना ही है। एंड द लास्ट पार्ट इज जब हम मेनोपॉज आते हैं तभी यूजुअली ये जो एक्चुअली देयर इज़ वन टाइप ऑफ कैटामिनल एपिलेप्सी इन वुमन। कैटामिनल मीन्स जो आपका जो पीरियड्स आते हैं तब आपकी मिर्गी बढ़ जाती है वो 1 हफ्ते के लिए बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इन्फ्लुएंस। सो ऐसे उसमें आपको जब ऐसे वुमन को ऐसे हिस्ट्री रहता है टीनेज में तो आपको एक्स्ट्रा दवाई का डोज देना पड़ता है वो 1 हफ्ते के लिए, जब वो कंट्रोल कर सकते हैं वो टाइम पे। ओके, सो ये जब मेनोपॉज आता है तब ये सब एपिलेप्सी सुधर जाती है क्योंकि आपके पीरियड्स बंद हो गए, ये हो गए। बट अब जो HRT रहते हैं, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, पीपल टेक आफ्टर मेनोपॉज टू कीप योर सेल्फ ब्यूटीफुल एंड दिस थिंग, that should be avoided in women with epilepsy because that will again produce hormonal fluctuations or that can again produce a seizure. And the last part is oral contraceptive pills जो लेते हैं उसका और ये जो फिट की दवाई है उसका इंटरेक्शन काफ़ी रहता है, एक दूसरे के लेवल कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बैरियर मेथड या लूप मेथड, इंट्रायूट्राइन डिवाइस ऐसा यूज़ करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव, इट इज़ बेटर। In spite, if you want to use oral contraceptive pills, then you have to use higher dose or a different type of this thing जिसमें progestin ज़्यादा हो, वैसे use कर सकते हैं। Ma'am, patient should be very regular to their doses. Yes, वो तो है मिर्गी में कि you have to be very regular with your drugs. उसकी कोई side effects भी हैं? हर एक फिट की दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कभी बाल गिरते हैं, हाथ कांपते हैं, वजन बढ़ता है, कोर्सनिंग ऑफ फीचर्स होते हैं, आने वाले बच्चे को भी कुछ असर्स हो सकते हैं, बट वो आप रेगुलर चालू रखें। कभी कभार रैश आ सकती है, एलर्जी हो सकती है, सो देयर आर लॉट्स ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। कभी ओवरीज पे असर होती है जिसको PCODs बोलते हैं, वो वाल्प्रोएट करके एक दवाई है विच शुड बी अवॉइडेड इन वुमन अनलेस इट इज़ मस्ट। तो उससे ओवरीज पे असर होती है, फिर उसकी वजह से फर्टिलिटी गोज़ डाउन। So definitely woman with epilepsy has certain problems, but we can definitely, with the neurologist, we can definitely deal with it. But I always give one advice to my woman patients, you know, I tell the parents, please let her find the partner on their own. Let them have a love marriage. Why? Because epilepsy is a big stigma and they don't get married. So if you find your partner on your own and they accept you in spite of epilepsy, तो बहुत ही अच्छा रहता है आगे जाके। मगर आप छुपा के करोगे, हाइड करके करोगे अरेंज मैरिज में, तो डिवोर्स रेसेस बहुत बढ़ जाते हैं आगे जाके। सो इट इज़, आई ऑलवेज एडवाइज ऑल फैमिलीज़, अब बता दो। अगर आपको सामने वाले पार्टी को कुछ पूछना है तो हमारे पास ले आओ, वी विल एक्सप्लेन क्या होता है, और उसके बाद फिर शादी कराओ। लव मैरिज में ये सब नहीं होता है, तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड इट एंड मेक वुमन स्टडी एंड सेल्फ दिस थिंग, यू नो, रिलायंट, so that they can earn for their own epilepsy drugs. Exactly. That is very important. All of them should have studied well. So give them good education, give them some this thing where they can earn for themselves, make them independent in their life. Then they can definitely live better.
Thank you. It was, I mean, you were phenomenal and we were having great conversation. Yeah, but thank you. You had very good questions and we covered a lot of part, I think. Thank you so much for coming on to this show, Winning Over Epilepsy program. Thank you. Okay, bye.